پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ یہوہ پاک خدا کے بزرگ اور مقدس ترین نام میں، جو مسیح خداوند میں میرا آسمانی باپ ہے، آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے۔ شکر کرتا ہوں اس سما کے لیے جو خداوند نے بطور بانس آج پھر میری زندگی میں بخشا ہے کہ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی جانے والی پرستش اور دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پاؤں، اور اب میں خداوند کے کلام کے ذریعہ سے جیسی خود برکت پائی ہے ویسی ہی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اور ایمان راسخ ہے کہ خداوند آج اپنے پاک کلام کی گہری اور عمیق باتوں کے وسیلہ سے ہمیں ڈھیروں برکات دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے کان اس کلام کے سننے کی طرف لگا لیں، اپنے ذہنوں کو کھول لیں کہ اس کو ہم سمجھ پائیں، اور اپنے دلوں کو کہ اس کلام کو ہم قبول کر سکیں۔ آج کے دن آپ کے ساتھ مل کر ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج جس زبور کا تعارف میں پیش کرنے کو ہوں وہ زبور 137 ہے۔ 150 مزامیر میں یہ زبور اپنے آپ میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ میں اس زبور کو آپ کے لیے تلاوت ضرور کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور کس کی بابت کہہ رہا ہوں، لیکن ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں آج نہیں کر پاؤں گا، صرف تعارف ہوگا، اور ان آیات کی تفسیر اور تشریح آنے والے کل خداوند نے جس خادم کو تیار کیا ہے ان کے وسیلہ سے سن پائیں گے۔ زبور 137 میں یوں لکھا ہے: ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلیم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دانا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلیم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا
जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया कि इस ज़बूर के तिलावत किए जाने का मकसद यह था कि इसके पस मंजर में, बैकग्राउंड में जो बातें हैं उनको जरा वाज़े किया जाए, ताकि आने वाले कल खुदावन ने चाहा तो इन आयात पर फिर बात की जा सके और उसका, उन आयात का समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। जी करता था कि वक्त इजाजत देता तो मैं ये ज़बूर 137 गाता भी, लेकिन वक्त ने इजाजत ना दी। लेकिन ताहम बहुत मारूफ ये ज़बूर है, आप जरूर इस गीत को कभी गाइएगा, जिसके बोल हैं, बाबल दिया नहरां ते जदू बैठे असी जा, सेयून नुकर याद तदू रोए मार ढा। ताहम यह ज़बूर तो आपकी खिदमत में तिलावत किया गया, इसकी 9 आयात थी, इसलिए मैंने इनको तिलावत कर दिया, क्योंकि मुख्तसर सा ये ज़बूर है। इसके पस मंजर में यह है कि यह ज़बूर जो शाहाने यहूदा है उनके अयाम में नहीं लिखा गया, और ना ही दाऊद के वक्त की यह बात है। यह कहीं ज्यादा बाद में यह ज़बूर जो असल में गीत है, इस गीत को लिखा गया। इंसानी मुसन्नफ कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि चूंकि ज़बूर 137 माफ कीजिए खुदा के कलाम में है, और खुदा खुद अपने कलाम का मुहाफिज है, और हम खुदा की इन बातों पर गौरो खोज करने को है। यह ज़बूर उस वक्त के हालात की मंजर कशी करता है जब यरूशलेम की बाबलियों ने ईंट से ईंट बजा दी, और यह नबूकदनेस्सर बादशाह के जरिया 586 यानी 586 केबल मसीह में उसने ऐसा किया। और अदूम जो इसराइल की सरहद पर था, उसने बाबलियों को उभारा और तहरीक दी कि हां हां चढ़ाई करो इन इसराइलियों पर, यहूदियों पर, ताकि आपका नाम, इनका जो नामो निशान है वो मुकम्मल तौर पर आपके जरिया से, बाबलियों के जरिया से मिट जाए। और यूं जब नबूकदनेस्सर की अफवाज ने यरूशलेम पर धावा बोला, तो इस शहर को इस तौर पर मस्मार कर दिया गया कि मजीद कोई शिनाख्त और कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आती थी इस शहर की कि यह वही शहर है। वो शहर जहां खुदावन की हैकल तामीर हुई थी, लावी और काहिन
اور عبادت گزار لوگ وہاں جا کر قربانیاں کیا کرتے تھے، وہ اس شہر یروشلم کی رونق اب مکمل طور پر تہس نہس ہو چکی تھی بابلیوں کے ذریعہ سے۔ ایون یہاں تک کہ جو معصوم بچے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر دیواروں اور چٹانوں کے ساتھ مار مار کے ان کا کام تمام کر دیا، اور بے شمار یہودی لوگوں کا لہو وہاں پر بہا ہے، خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، اور بالآخر جو یہودی بچ گئے بابل نے ادوم کی ہلا شیری پر ان کو اسیر کیا، ان کو غلام بنایا اور ان کو بابل لے جایا گیا، اور بعد میں 515 یعنی 515 قبل از مسیح میں دوبارہ سے یہ ہیکل تعمیر ہوئی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ 586 قبل از مسیح میں بابلیوں نے ان یہودیوں کو اسیر کیا اور بابل لے گئے، اور 515 میں کہیں 515 میں ایسا تو نہیں ہوا اور بعد میں 586 میں اسیر ہوئے، نہیں نہیں نہیں، یاد رکھیے کہ جو کیلنڈر ہے، جب ہم 0 سے 1 2 3 اور آج ہم 2022 میں ہیں، لیکن مسیح سے پہلے 0 سے پہلے جو کیلنڈر تھا وہ وہاں سے پیچھے کی طرف 1 2 3 4 5 کی طرف جاتا تھا آدم تک کے وقت کے لیے، یعنی مسیح جو سینٹرل فیگر ہے وہاں 0 سے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اگرچہ کچھ 4 سالوں کا فرق بھی ہے، لیکن پھر بھی مین بات جو ہے اس 0 سے پہلے قبل از مسیح، یہاں سے ہی 0 1 2 3 4 5 ٹائم لائن کے اعتبار سے پیچھے کی طرف کیلنڈر جاتا ہے، اور مسیح کے بعد 1 2 3 4 یہ آگے کی طرف کیلنڈر جاتا ہے، اور آج ہم 2022 میں ہیں۔ اور یاد کیجئے کہ جب ایسا ہوا تو یہ زبور وہ جو 70 سال کے قریب اسیری تھی یہودیوں کی بابل میں، اس عرصے کے دوران، ان سالوں کے دوران اس زبور کو لکھا گیا۔ پاسبل ہے کہ حزقیل بھی ان اسیران یہودا میں جو بابل میں تھے موجود ہوا ہو، کیونکہ جب ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب میں نہر کبار کے پاس بابل میں، تاہم میں نہیں جانتا کہ کون انسانی مصنف ہے، اور مجھے اس بات کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ علماء کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق یہ جو اسیر لوگ تھے انہی میں سے کوئی تھا جس نے اس زبور کو، اس گیت کو روح القدس کی تحریک سے لکھا ہے۔ یہ زبور ان اسیروں اور ان غلاموں کی بابت اور ان کی حالت زار کی بابت بتاتا ہے کہ کیا کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر اور گنوا کر
हाथ धोकर, जबरदस्ती, खुशी से नहीं, उनको गुलाम और असीर बनाकर ले जाया गया है। आज जब मैं बाद इस दोपहर से लेकर 1-1.5 घंटा पहले तक मैं ये स्टडी करता रहा, 4-5 घंटे इस ज़बूर की बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करता रहा, पस मंजर, और बोलना शायद आधा घंटा होगा। मेहनत दरकार होती है इस काम के लिए, और इसीलिए मैं चाहता था कि आज सिर्फ और सिर्फ इस ज़बूर के पस मंजर को ही बयान किया जाए। और एक वीडियो मैंने देखी कि जब अफ्रीका से ब्लैक अफ्रीकन्स को यूरोप और अमेरिका में कैदी बनाकर अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती ले जाया गया, तो मिलियंस के हिसाब से उन गुलामों को अमेरिका ले जाकर वहां पर रखा गया, और उनके साथ क्या होता है मैं बयान करने में कासिर हूं, जबान तरसती है। लेकिन अगर बाद में कभी आपको इत्तफाक हो तो आप YouTube में जाकर वो जो अफ्रीकन स्लेव्स हैं उनकी बाबत आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ है। ताहम यह भी इंकशाफ हुआ, और फिर यह भी इस रिसर्च के दौरान कि इन यहूदी लोगों के साथ शाह बाबल नबूकत नजर ने क्या किया, उसकी अफवाज ने क्या किया, और माबाद अदूमी लोगों ने जब बाबलियों को उभारा तो अदूमियों के उभारने पर भी बाबलियों ने यरूशलेम को पसपा करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन एक बात जो काबिले जिक्र है वो ये कि जब ये यहूदी लोग बाबल में असीरी के आलम में थे, गुलामी के आलम में, सख्त मशक्कत इनसे ली जाती थी, तो दर हकीकत इसके पीछे कुछ वजूहात भी थी कि क्यों असीर हुए, आखिर इसकी क्या वजह है। दौरान स्टडी यह मालूम हुआ, और आप भी चूंकि खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं, और आपको भी इसके बारे में मालूम है कि यहूदियों ने खुदा को भूलकर कई अशरू तक बुत परस्ती की, खुदा की तरफ से, यहोवा खुदा की तरफ से मुंह फेर लिया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाने लगे और उनको खुश करने लगे। इंसान की शुरू से ही यह एक आरज़ू रही है, तमन्ना रही है कि कोई ऐसा हो जिसको हम देख सकें कि वो हमारा खुदा है, अगरचे वो चल सकता है, फिर सकता है या नहीं कर सकता, यह दूसरी बात है। और शायद यही वजह है कि आज भी कई जगहों पर ऐसे स्टैचूज और ऐसे बुत नजर आते हैं कि उनके मानने वाले ये कहते हैं कि कोई होना चाहिए था जो नजर आता कि ये हमारा खुदा है, अगरचे ये बुत तो कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे हमारा तसव्वुर है
इसको देखते हुए याद आता है कि कोई हमारा खुदा है। मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ यह कहता है, ईमान अनदेखी चीजों का, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान है ही यही। और तोमा को खुदावंद ने क्या कहा था? तोमा, आप तो देखकर ईमान लाए हो, लेकिन मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। और मैं समझता हूं, बल्कि उलमा ये समझते हैं, मैं तो अभी बाइबल मुकद्दस के इल्म के एतबार से प्राइमरी जमात में हूं। 30-35 साल हो गए इस किताब को पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक मैं ABC में हूं। लेकिन मैं उलमा की बात करता हूं कि वो ये कहते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को तंबीह करने के लिए, उनको तरबियत देने के लिए, उनको सिखाने के लिए बाबल को तैयार किया, ताकि वो आए और इन यहूदियों को तंबीह करें। लेकिन असल में इन बाबलियों ने कहीं ज्यादा बढ़कर खुआरी की, जो यहूदियों के लिए दुरुस्त और मुनासिब नहीं थी किसी भी पहलू के एतबार से। बाबली लोग नफरत के एतबार से, कदूरत के एतबार से और जुल्म के एतबार से बहुत मारूफ थे। जमानाए हाल में भी बहुत सारे लोग जुल्म और नफरत और कदूरत के एतबार से मारूफ हैं, लेकिन बाबली अपनी जगह पर बहुत ज्यादा मारूफ थे। इसीलिए वो तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए और उनकी यह कोशिश थी कि यहूदियों की नस्ल कुशी की जाए और इनका एक बच्चा भी बाकी न बचे। और यह भी बताता चलो कि ये लोग, यहूदी लोग, दर हकीकत खुदा के थे। खुदा ने इस उम्मत को प्यार किया। और मैं सोचता हूं कि यह खुदा के प्यार ही की वजह है कि खुदा ने इनको तंबीह के लिए गैर कौमों के हवाला किया, क्योंकि खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको वो तंबीह भी करता है। और ये चूंकि खुदा के लोग थे और खुदा को भूल गए, इसलिए खुदा ने उनकी तंबीह और इस्लाह के लिए बाबल को तैयार किया। लेकिन यह भी याद रखिए कि खुदा ने फिर भी अपना हाथ ढीला नहीं किया उनके पीछे कि जो होता है होता रहे। नो, बाबलियों की बागडोर भी लगाम खुदा के हाथ में थी और उतना ही वो कर पाए, इन यहूदियों को दबा पाए जितना दबाने की इजाजत दी गई थी, उससे ज्यादा नहीं। यानी नस्ल कुशी नहीं कर पाए। और यह जो जबूर है, इसी तरह के उस तजुर्बे का बयान है जो यहूदियों को बाबल में हुआ है। इस जबूर के मतन के मुतालिया करने से
हमें यह पता चलता है कि ये बाबली लोग इन यहूदियों से मुखातब होकर कहते थे, ठट्ठे लगाते हुए, तमस्कर उड़ाते हुए, कि जब तुम सयून में थे, यरूशलेम का कदीम नाम सयून है, तो वहां पर तो तुम अपने यहोवा के बड़े गीत गाते थे, सयून के गीत गाते थे। अब भी तो गीत यहां पर गाओ कि हम सुने। लेकिन ये यहूदी लोग अपने आप में ये महसूस करते थे कि इस्राएल की हशमत जाती रही है, खुदा का घर मुकम्मल तौर पर मस्मार हो गया, जमीन बोस हो गया, इस्राएल की हशमत जाती रही है। हमारे कई नौनहाल बच्चों को दीवारों के साथ और पत्थरों और चट्टानों के साथ पटक पटक कर मार दिया गया है। हमारी खवातीन की अस्मत दरी की गई है। बेशुमार नौजवान तलवार और नेजों की नजर हो गए। शहर यरूशलेम अब हमारे लोगों के लहू से रंगा हुआ है। हम यहां पर अब असीरी के आलम में हैं, पस्त हाली में। इंसानी पहलू के एतबार से हमारे सामने कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो उस वक्त उनको ये बाबली ठट्ठे मार कर, कह के लगा लगा कर कहते कि अब भी तुम अपने उस यहोवा खुदा के लिए जिसके तुम थे अब गीत गाओ। उस शहर यरूशलेम और उस सयून के लिए तुम ये गीत गाओ। लेकिन उनका क्या जवाब था? यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात एक गीत, इसी गीत में है कि उन्होंने जवाब क्या दिया? अपने खुदा दे गीत असी गाउंदे किस तरह, अपने खुदा दे गीत असी गाउंदे किस तरह, ओ सी बेगाना देश नाले गैर ओ जगह। मुराद यह है कि जब इंतहाई पस्ती में है, मायूसियों ने, डिप्रेशन ने, परेशानियों ने उनको घेर रखा था, गुलामी की जंजीरों में वो बंधे हुए थे। उनको वो तमाम याद आता था जो इन बाबलियों ने उनके साथ किया। उस वक्त उनका जवाब यह था, हम कैसे गीत गाएं खुशी के, मुसर्रत के, तारीफ के, जब हमने खुदा को नाराज किया और उसकी नाराजगी के नतीजे में आज हम यहां पर हैं। हम किस तरह से उसकी गवाही दें? बाय द वे, उनकी सिचुएशन ऐसी ही थी कि यह आसान नहीं था कि वो वहां पर इस तौर पर खुदावंद के लिए गीत गाते। उन्होंने अपनी बरबतों को, आलाते मौसीकी को बेद के दरख्तों के साथ लटका दिया था। बाबल दरियाओं और नहरों की सरजमीन थी। मौजूदा इराक की बात कर रहा हूं और इसमें ये असीराने यहूदा और यरूशलेम अब उन्हीं नहरों के किनारे बैठे हुए और उनको कहा जाता था, गाओ अब गीत। असल में ये बाबली लोग, आप यूं कहें कि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उनको कहते थे कि गाओ।
उनको गाओ। ये ऐसे ही है कि खुदावन मुआफ फरमाए कि अगर हमारे बच्चे की बर्थडे हो लेकिन उसको बुरी तरह से जालिम और नफरती लोग आकर मार मार कर खत्म कर दें, हमारा घराना उजड़ जाए, तबाह हाल हो जाए, और उस वक्त हमें कोई कहे कि यह गीत गाओ, मैं सोचता हूं शायद अभी तो हम कहेंगे ओ जी मैं अयूब की तरह कहूंगा खुदाबंद ने दिया खुदाबंद ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, मैं गीत गाऊंगा। मेरे भाई अगर गाएगा, मैं खुदाबंद की तारीफ करता हूं और तुझे सलूट पेश करता हूं। लेकिन मैं बशर होते हुए इस तरह की सिचुएशन में पता नहीं कितने सवाल मेरे जहन में खुदा के लिए उठेंगे, पता नहीं कितने सवाल, पता नहीं कितने सवाल। और इन लोगों के अजहान में भी ये सवाल पैदा हो रहे थे कि देखो खुदा किस तौर पर हमें तंबीह दे रहा है, ये हमारी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा बाहर है। और मैंने जब अफ्रीका के गुलामा की बात की जिनको अमेरिका ले जाया गया था, जब उनको वहां पर कहा गया कि अब तुम अपनी जबान में गीत गाओ, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने वहां पर गीत गाए। खुदावंद की तारीफ हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन में हम गीत गा सकते हो तो क्या ही बात है, हमारे ईमान का मयार बहुत बुलंद होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अक्सर ऐसा नहीं होता। एक और नुक्ता यहां निकलता है कि यहूदियों के लिए मौका था कि अगर वो वहां पर गीत गाते सयून के और यहोवा खुदा के, तो बाबलियों के लिए गवाही होती। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये उनके लिए इस तौर पर यहां पर गीत गाना इतना आसान नहीं है। जरा सोचें मैं और आप कि अगर इस तरह की सिचुएशन में मैं और आप हों, अगर कुछ लोग हमारे बरखिलाफ इसी तरह से कुछ करें, हमें एक नई सरजमीन में काले पानी पर ले जाया जाए और वहां पर रखा जाए, उस वक्त हम क्या करेंगे? याद कीजिए, आईएसआईएस ने बहुत सारी स्लेव गर्ल्स और बहुत सारे स्लेव यानी गुलाम मर्दों और औरतों को भी अपने स्लेव बनाया। उनकी दास्तानें सुने जो बच गए, यूं लगता है जैसे जमीन कांप उठती है। गुलामों से कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। इवन ऐसे तमाम ममालिक जहां कहीं आज भी इस तरह का तस्वुर है, उनसे कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि शायद हम जो आज इस वक्त इस स्टडी में शरीक हैं, हम भी अपने आप के बारे में सोचते हो कि शायद मैं किसी अजनबी देश में गुलाम की हैसियत से तो नहीं हूं, उन यहूदियों की तरह की मेरी सिचुएशन तो नहीं है, उस तरह से मैं उजड़ा हुआ या उजड़ी हुई नहीं हूं।
लेकिन जो मेरी सिचुएशन है वैसी तो नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली जहनी तौर पर जो तनाव है, टेंशन है और परेशानी है, वो कुछ वैसी ही हैसियत रखती है। हम अपने आप को शायद अब इस तौर पर अकेला महसूस करते हूं कि फिजिकली कोई और उम्मीद हमें नजर ना आती हो। मैं ऐसे तजर्बात से गुजरा, शायद मेरे भाई और मेरी बहन तू भी इन तजर्बात से गुजर रहा हो, जहां फिजिकली बाबल में तो नहीं, लेकिन अपनी टेंशन्स और अपनी फिक्रों और परेशानियों और मायूसियों और डिप्रेशन और सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस के एतबार से तुम अपने आप को एक बाबल में पा रहे हो। 2-3 बातें याद रखने की है। एक तो ये कि इस तरह की सिचुएशन में होने के पीछे कोई खास रीजन तो नहीं है, कोई खास रीजन तो नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा, खुदा हम भी नहीं है, हम इंसान हैं। हमसे गलती गुनाह हो सकता है, पॉसिबल है। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन ये एक पहलू है कि मे भी शायद ये रीजन हो। या नंबर 2, हमने जिंदा खुदा को, जो हालात को तब्दील कर सकता है, शायद उसको पैसे पुश्त डाला हो और अपने कई और माबूद बना लिए हों। सोचने का मकाम है। जरूरी नहीं कि उनके आगे पूजा जाए, उनको उनकी पूजा पाठ की जाए, जरूरी नहीं। लेकिन जो काम खुदा हमारे लिए कर सकता था और कर सकता है, शायद उस काम के लिए हमने बशर को अपना बाजू जाना हो, और खुदा मुझे और आपको वापस लाने के लिए तरबियत कर रहा है। सुअरों की फलियां खाने का एक वक्त है, टल जाएगा, बशर्ते कि हमें सोच पैदा हो कि मुझे वापस अपने खुदा से अपने ताल्लुक को उस्तवार करना है, मुझे अपने रब को मनाना है, दाऊद की तरह अपने पापों का, अपने गुनाह का जैसा हुआ वैसे ही इकरार करने के जरिया से। और यह भी पॉसिबल है कि खुदाबंद खुदा मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान ले रहा हो, यह भी पॉसिबल है। और यह भी पॉसिबल है कि हमारे ईमान का मयार जो होना चाहिए था वो नहीं, हम पीछे हैं, और जिस तौर पर हमें खुदाबंद की गैरत अपने आप में रखने की जरूरत थी, वो गैरत नहीं रही। शायद इसलिए हम मार खा रहे हो। सोचने का मकाम है ना। नफरतों और कदूरतों के इस जमाने में हम अपनी नस्ले नौ पर क्या काम करते हैं। अपनी नौजवान नस्ल जो कल की कलीसिया होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं। अजीजों, जब हालत जार इज्तमाई तौर पर देखी जाए तो दिल खून के आंसू रोता है। हमारी नई नस्ल में से कई ऐसी भेड़ें हैं
जिनको दो टांगों वाले भेड़ियों ने शिकार कर दिया, और हम रोते नहीं और मातम नहीं करते। आए दिन कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन कलीसाई की आदत में से अक्सर हम खामोश रहते हैं और हम कुछ करते नहीं हैं। अभी एक हफ्ते की बात है, मैंने एक और वीडियो में भी एक मैसेज दिया है। एक हफ्ता पहले एक भाई ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, पाकिस्तानी भाई है, उन्होंने एक मैसेज किया। काश के मैं आपको सुना सकता, लेकिन वक्त नहीं, मुख्तसर। उन्होंने कहा कि भाई, नई नस्ल के लिए हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसके लिए खास दुआ कीजिए, क्योंकि हम उनको अपने हाथों से खो रहे हैं, गंवा रहे हैं। लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का फंदा उनके गले में है। कलीसाई तौर पर उनको उस तौर पर फीड किया नहीं जाता, और गैर मसीहों के साथ उनके ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। और उन्होंने कहा, गुजरे हफ्ते मैं अपने एक गैर मसीही खानदान में गया, क्योंकि उनके और मेरे बिजनेस के ताल्लुकात हैं, और उन्होंने मुझे यह कहा कि ये जो हमारी बेटी है ना, इसका एक क्रिश्चियन लड़के के साथ निकाह होने को है, जो अब मजीद क्रिश्चियन नहीं रहा। क्योंकि वो एक अरसे से हमारे साथ है, और हमारी जितनी भी पट्टियां हैं, हमने सारी की सारी उसको पढ़ा दी, और अब बहुत जल्द वो ऐलान करेगा कि अब मैं कौन हूं। और वो भाई जिसने मैसेज किया, उसने कहा, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैंने एक दो अजीजों को वो मैसेजेस भेजे हैं, और मेरा दिल टूट गया। और मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई, मैं दुआ का कायल हूं, मैं दुआ करता हूं, खुदा हालात को तब्दील करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो इस वक्त चर्च पॉलिटिक्स है, या हमारी चेयरशिप है, ये ऐसी है जो हमारी नौजवान नस्ल पर हमें काम नहीं करने दे रही। नौजवानों के लिए कोई काम नहीं होता, जीरो के बराबर है। और इस सबब से हमने बस दुआओं पर जोर दिया, इबादतों पर जोर दिया, अकीदे और दुआए रब्बानी पर जोर दिया। मैं इनका यानी मुनकर नहीं हूं, लेकिन जो स्पेसिफिक नीड है हमारे नौजवानों की, हमने उस नीड को पूरा नहीं किया। और जब हड़ तलू गुजर जाए, फिर मक्खी वांगर हाथ मलने, फिर इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। खुदा के लोगों, केवल इसके के बाबली, समझ रहे हैं ना बाबली कौन है? केवल इसके के बाबली हमें अपनी गुलामी में हमेशा के लिए मुक़य्यद कर दे। आए हम तौबा करके खुदा की तरफ रजू लाएं, हम जो लीडर्स हैं हम, और अपने नौजवानों को हम इस तौर पर फीड करें ताकि उनकी बुनियाद चट्टान पर हो, रेत पर नहीं। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस ज़बूर के पस मंजर से मुताल्लिक
की जाने वाली बातों के वसीला से बरकत बख्शे, हमें चैलेंज मिले ताकि हम बेहतर से बेहतर खुदावंद के जलाल के लिए कर सकें। मुख्तसर सी दुआ करता हूं, ए कादर मुतलिक यहोवा खुदा, मसीह यस्सु में आसमानी पिता, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं आज के इस कलाम के लिए, आगाही के लिए और चैलेंज के लिए। खुदावंद मुमकिन फरमाइए कि इन बातों की अक्कासी मेरी और मेरे इन सामईन और नाजरीन भाइयों और बहनों की जिंदगी से हो पाए। ओ खुदावंद, हम जो कलीसाई रहनुमा है, हमें बेदार कीजिए, बेदार कीजिए और नौजवानों के लिए खास बोझ बख्शिए। अपने पेट की नहीं बल्कि नौजवानों की फिक्र करने वाले हों, ताकि भेड़िए इन भेड़ों को शिकार न करें। और दुआ करता हूं हमारी कलीसियाओं में बेदारी भेजिए। अगरचे ये बातें सामईन और नाजरीन के लिए सख्त तो हैं, लेकिन खुदावंद इन बातों को हमें अपने लिए चैलेंज के तौर पर कबूल करने का फजल अनायत फरमाइए। और आज वो तमाम जो ऑलरेडी भेड़ियों के पंजे में हैं, दुआ करता हूं यीशु के कुदरत वाले नाम में पीतल और लोहे के बेंडे टूट जाएं और वो असीर आजाद हों, ताकि फिर से मकदस को तामीर कर सके। और खुदावंद, वो तमाम जो बीमार और परेशान हाल हैं, उनको भी आपके सुपुर्द करता हूं। यीशु नाम में उनको छू कर आप आजाद कीजिए, शिफा बख्शिए, ताकि आपका जलाल आपके लोगों के वसीला से जाहिर हो सके। खुदावंद, इस खाकसार खादम की दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगता हूं मसीह खुदावंद के जलाली, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर हाजिर होगा अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो, जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।